Hello everyone, welcome to e-learning of OCM's lecture. Okay, and today we are going to start with the third business services, that is warehouse. Till now we are done with two business services, that is banking and insurance, right? And today we are going to see third business service, that is warehousing. Okay, so what do you mean by warehouse? Warehouse is a place where goods are stored. Okay, we can store goods there from the time of production till the time of consumption. It is not important that every time when there is a production that there will be consumption, right? Like we can say the statues of Ganpatis. Yes, in Ganpati festival, Ganpati Chaturthi, we say yes. Every time the unsold statue of or idol of Ganpati are kept in warehouse, and at the time of next year Chaturthi, next year's Ganpati festival, that idol is again bring to the brought to the shop, and it is brought to the shop for sales. Okay, so here we can see what procedure took place here, that is warehousing. That shopkeeper took his remained idols of Ganpati in warehouse, and in next year again, जब next year का गणपति चतुर्थी आया, उस टाइम पे क्या किया, उसने वेयर हाउस से अपना जो गणपति है वापस लाकर दुकान में रख दिया. Yes, this process is known as warehousing, where goods are stored, goods are kept safe till the time of consumption, like umbrellas or raincoats. Yes, that things are stored in warehousing, and at the time of consumption it comes for the again to the shop. Yes, let's start with the PPT now. Okay, as you can see on your screen, warehousing, you can see goods are stored, it is packed goods are stored there. We can say everything can be stored: sugar, onions, your other thing, clothes and everything. Yes, that can be stored in warehousing. What is the meaning of warehousing? Warehousing refers to storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. Preserving of goods means protecting of goods. See, warehouse keeper, one person is there, warehouse keeper, he is the in charge of that warehouse. Okay, if I am having a company, the nature of my company is it sells umbrellas. Okay, so I'll keep my umbrellas, the company, if production of umbrellas is there, I'll keep them in the warehouse, we can say go down. Okay, and at the time of consumption I'll take it out from the go down and sell it. Okay, so person who takes in charge of that go down or that warehouse is known as warehouse keeper. Okay, warehouse can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving of goods from the time of production till the time of consumption. जब से उसका प्रोडक्शन हुआ है तब से लेके जब तक वो कंज्यूम नहीं होता है, तब अभी सपोज के ऐसा तो नहीं होगा कि आज हमने ऑर्डर दिया कोई चीज का और वो ऐसा होता है कभी कि बनवाने के लिए दिया है फिर आएगा नहीं, वो क्या बोलते हैं जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम गोडाउन से लेकर आते हैं. यस, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? which function is there, that is which service is there, that is warehousing. Okay, functions of warehouse, first one is storage. Of course it stores goods whenever it is needed. Warehouse keeper gives that goods to owner. Yes, this is the basic function of warehousing. Surplus commodities which are not needed immediately can be stored in warehouses, like onions, right? Onions, प्याज, उसका हार्वेस्टिंग होने के बाद, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, खेत से जब वो निकल जाता है उसके बाद वो तुरंत मार्केट में नहीं आता, वो कहा जाता है वेयर हाउस में.
और जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे वो प्याज जो है, जो अनियन है, वो वेयर हाउस से मार्केट में जाते जाएंगे। यस, अब सपोज कि हमारा कंपनी है, वी आर हैविंग अ कंपनी। अब हम वहां पे प्रोडक्शन के लिए जगह रखेंगे, एम्प्लॉयज के लिए जगह रखेंगे, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, या फिर स्टोर करेंगे अपने गुड्स? सिर्फ नहीं। तो ये गुड्स स्टोर करने के लिए, टू स्टोर आवर गुड्स, हमने कौन सी जगह बनाई है? वेयर हाउस। के प्रोडक्शन हो रहा है और डायरेक्टली कहाँ पर जा रहा है? वेयर हाउस में। और जब डिमांड आएगी इसकी तब वो डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट हो जाएगा। गेटिंग इट? ओके। दे कैन बी सप्लाइड एज वेन नीडेड बाय द कस्टमर। यस, सपोज कि हम फ्रिज लेने जाते हैं, okay, then at that time if I told that vendor, shopkeeper, मुझे रेड कलर का ही फ्रिज चाहिए, वहां पे ब्लैक है, ब्लू है, white, gray, many colors are there, but what I told that shopkeeper that I want fridge of refrigerator of red color. He told me okay मैम, कल 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 डिलीवर हो जाएगा आपके घर पर वो फ्रिज, अभी गोडाउन में है, गोडाउन से आपके घर पे हम डिलीवर कर देंगे। What do you mean by that? This sentence applies there. They can be supplied as and when needed by the customer. Means that shopkeeper had kept his product in warehouse as well. उसने कहा शॉप में तो अभी नहीं है, बट जो है वो मैं वेयर हाउस से, आपके गोडाउन से आपके घर पर पहुंचा दूंगा फ्रिज। यस, दिस इज नोन एज, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दैट इज स्टोरेज। Next one is price stability. It creates of time utility by warehousing. In warehousing, usually large stock of goods are kept. You must be learned in your economics, demand and supply, right? ज्यादा डिमांड होगी, सप्लाई कम होगा, तो ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। You know this. We won't be going in that. Yes. So warehousing helps to stabilize the price. Okay, whenever there is a demand in market, that things are supplied in the market by the warehousing services. Yes, whenever there is a storage in the market, goods can be immediately supplied through warehouses. Okay, means whenever it is demanded, that things can be supplied immediately because of warehouses. डिमांड है, सप्लाई भी हो रहा है, तो क्या प्राइस बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा? मींस बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग देयर इज अ स्टेबलाइजेशन इन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, रिस्क बियरिंग इज वॉट एवर रिस्क इज देयर, इट इज ऑन द, वी कैन से, हेड ऑफ द वेयर हाउस कीपर। मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, मैंने अपना प्रोडक्शन जो भी है वो जाके मैंने कहाँ पर रख दिया है? सारा जो गुड्स है मेरे वेयर हाउस में। आई हैव केप्ट ऑल माई गुड्स इन वेयर हाउस। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेयर हाउस कीपर टू प्रोटेक्ट दैट गुड्स। जो मैंने जिस हालत में मैंने गुड्स वेयर हाउस में रखवाए हैं, मुझे उसी हालत में गुड्स नहीं मिलते हैं, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल देयर? वेयर हाउस कीपर। उसको वो चीज की भरपाई करके देनी पड़ेगी। सब उसकी चोरी हो जाती है, या कुछ इंसेक्ट्स वगैरह कुछ होते हैं, बारिश हो जाती है, कुछ भी, अगर मेरे गुड्स को कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वेयर हाउस कीपर। इसीलिए वेयर हाउस कीपर गुड्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर गुड्स सेफ नहीं रहे, प्रोटेक्टेड नहीं रहे, तो मुझे ये पे करना पड़ेगा, मुझे ये भरपाई करके देनी पड़ेगी। आई नीड टू कॉम्पनसेट इट। That is why warehouse keeper bears risk, okay, and he protects goods, because he knows if he is not protecting the goods, he is not paying attention on the goods, then he will be responsible and he need to compensate that price of goods. Okay, so third function is risk bearing. Warehouser bears risk. Okay, next one is financing. Financing here means like सपोज कि लोन चाहिए, इफ वेयर हाउस कीपर नीड्स लोन, जैसे हम सोना गिरवी रखते हैं, वैसे ही ये वेयर हाउस कीपर जो गुड्स उसके वेयर हाउस में है, वो उसको गिरवी रखकर पैसा बैंक से ले सकता है। ओके, या फिर जो कंपनी है वो भी वो वेयर हाउस में जो गुड्स पड़े हैं उसके ऊपर लोन ले सकती है एज अ सिक्योरिटी। सपोज अगर मैं कंपनी हूं, मैंने XYZ मेरी कंपनी है,
मैं कंपनी के नाम पे लोन लूंगी, आई विल टेक लोन ऑन द नेम ऑफ कंपनी। सिक्योरिटी में क्या दूंगी कि मेरे गोडाउन में 10 लाख का सामान पड़ा है। सेम वे वेयर हाउस कीपर भी बोल सकता है कि मुझे भी लोन चाहिए, बैंक से बोल सकता है मुझे भी लोन चाहिए। सिक्योरिटी क्या है कि मेरे वेयर हाउस में 10 लाख का सामान पड़ा है। यस, अगर वो पे नहीं करता है वो पैसे, तो जो उसका 10 लाख का सामान है वेयर हाउस कीपर का, वो चल जाएगा। बट जो कंपनी के वेयर हाउस कीपर, जो कंपनी ने वेयर हाउस कीपर को सामान दिया है 10 लाख का, जो भी हमने पढ़ा कि रिस्क बियरिंग, राइट, उस टाइम पे वेयर हाउस कीपर को कंपनी को 10 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। मीन्स इनडायरेक्टली वेयर हाउस कीपर नीड्स टू पे 10 लाख रुपीज आइदर टू बैंक or to the owner. Yes, so financing means, in short, because of warehousing, warehouse keeper or the company can raise their capital or can take loan from the financial institutions, okay, by saying on the security of goods which is there in the warehouse. Goods act as a security for the warehouse keeper or for the financial institutions, okay. Next one is grading and packing. It is a duty of warehouse keeper to grade the goods. Grade the goods means अब आप देखते होंगे कि चावल, राइस, यस, अलग अलग तरह के होते हैं। 5 रुपए किलो भी होते हैं, 10 रुपए किलो भी है, 30 रुपए किलो भी है, 50, 60, 80, 100, 120, 180, 200, मीन्स चावल ही है ना यार, क्या डिफरेंस है? यस, देयर इज अ डिफरेंस। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग क्वालिटी के हैं, तो अलग अलग क्वालिटी की चीजों को ग्रेड करना। ऐसे ग्रेड होते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, राइट, इसे ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन। वैसे ही वेयर हाउस कीपर क्या करता है कि जो गुड्स है उसको अलग अलग क्वांटिटी के, सॉरी, क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग करता है, ग्रेड करता है। ऐसे आम होते हैं, आम बहुत तरीके के होते हैं, यस, सेम जो आम है उसको अलग अलग करना, कौन से टाइप का है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ओके। देन पैकिंग, जो भी गुड्स उसको पैकिंग करना किसका काम है? वेयर हाउस कीपर का। वेयर हाउसिंग के अंडर ग्रेडिंग एंड पैकिंग भी आता है, ओके। ग्रेडिंग में चीजों को क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग करना, पैकिंग में चीजों को पैक करना, ऐसे बॉक्सेस वगैरह में हमने देखा है पिक्चर में, राइट। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। मेरी कंपनी है, मैंने अपना सामान कहाँ पर रखा है? गोडाउन में रखा है, वेयर हाउस कीपर के पास। अब जब मुझे ऑर्डर मिलता है, सपोज मुझे 10 फ्रिज का ऑर्डर मिला है, मेरा फ्रिज डीलिंग का है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, 10 फ्रिज का मुझे ऑर्डर मिला है, तो वो 10 फ्रिज में जाकर गोडाउन से जाकर अपने कंपनी में लाऊंगी नहीं, नो, आई वोंट ब्रिंग इट बैक। I'll call warehouse keeper and I'll tell him that XYZ जगह पर, एड्रेस पर 10 फ्रिज भिजवा दो, send 10 fridge to XYZ company or person. Means what here? Warehouse keeper or warehousing is also playing function of transportation. मीन जहां पर चीज चाहिए वहां तक चीज पहुंचा रहा है कौन? with the help of transportation. But who? That is warehousing. Okay, warehouse keeper जो है जहां पर चीज चाहिए वहां पर वो पहुंचा रहा है. That is a service of business service also. It collects goods from the place of production and also sends goods to the place of delivery on the request of the owner. मेरे कंपनी से आके वो अपने गोडाउन तक चीज लेके जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से गोडाउन गुड्स लेके जाएगा, और जहां पर वो चीज की डिमांड है वहां तक वो पहुंचाएगा भी। ये किसके अंडर आता है? वेयर हाउसिंग के अंडर, ओके। नेक्स्ट वन इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम पर चीज अवेलेबल है, किसकी हेल्प से? वेयर हाउसिंग पे। चीजों को रखने की जगह है, किसकी हेल्प से? वेयर हाउसिंग की हेल्प से। सिंपल। वेयरहाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। अनियन जो है, प्याज जो है, जब जब इसकी डिमांड बढ़ती है तब तब क्या होता है? क्योंकि इसका सप्लाई कम हुआ है, यस। तो ये सब कौन देखता है कि जब इसकी डिमांड होगी तब सप्लाई करना है, दैट इज वेयर हाउसिंग। मीन्स टाइम पे चीज पहुंचाता है, प्लस also creates place utility by providing the goods at the place they are required. टाइम पर चीजें मार्केट में भेजता है और जहां पर वो मार्केट में चीज चाहिए वहां पर भेजता है। That means warehousing also plays function of time and place utility. Next one is processing. See, every time it is not possible कि खेत से हमने जो निकाला है चीजें
वो वैसी की वैसी हम मार्केट में बेचे, नो। जैसे कि पल्सेस होती है, दाल होती है, यस, सबके घर में बनती है दालें, यस, दाल होती है, दाल को पॉलिश करना पड़ता है, वी नीड टू पॉलिश दैट, ओके। चावल काफी अपने का पॉलिश होते हैं, जैसे कि एप्पल्स के ऊपर स्टैंप लग के आते हैं या फिर कुछ स्टिकर्स लग के आते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोसेसिंग। चीजों को पॉलिश करना, चीजों को इस तरह बनाना कि वो दुकान में या फिर मार्केट में बिक सके, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ वेयर हाउस कीपर। एज हमने ऐसे देखा अभी ग्रेडिंग एंड पैकिंग, यस, हमने चीजें दे दी, अब वो अलग अलग कर रहा है चीजों को पैक कर रहा है, अब वो पैक होके मार्केट में जाएगा, यस, मीन्स प्रोसेस किया उसने। कोई भी चीज को प्रोसेस करना है, जैसे हम गेहूं है, गेहूं कच्चा खाते हैं कि हम लोग? नहीं, हम उसका आटा पिसवाते हैं देन रोटी डालते हैं। चावल कच्चा खाते हैं कि हम कुक करते हैं खाते हैं, प्रोसेसिंग इज देयर, यस, कुछ तो हम उसको आगे कर रहे हैं तब जाके वो कंज्यूम करने के लायक बना है। द सेम मैनर it is the function of warehouse to process the good for the consumption, okay. Certain commodities are not consumed in the form they are produced, जैसे वो प्रोड्यूस होती है वैसे वो कंज्यूम नहीं हो सकती, काफी चीजें होती है ऐसी। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। एग्जांपल, पैडी इज पॉलिश्ड। जो भी हम गेहूं या फिर चावल, जो भी हम खेत से चीजें निकालते हैं, वो पहले पॉलिश होने के लिए जाती है, डायरेक्टली मार्केट में नहीं आती, ओके। देन फ्रूट्स आर रिम्ड etc. Sometimes warehouse undertakes such activities on behalf of the owner, yes, on the we can say owner's request, on the owner's request, on the owner's request, warehouse keeper process the goods, okay. So today we saw the functions of warehousing, yes, storage, price stability, risk bearing, financing, grading and packing, transportation, time and flexibility, and processing, okay. In the next lecture we'll learn types of warehouses. It is very interesting and very important, it always comes in exam, okay. Just a minute. Okay, so today we learned about functions of warehouse. In next session we'll learn about types of warehouse, and in next lecture we'll try to finish this chapter, okay. So if you have any doubt, please ask me, and children, stay home and study.